तो आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा अबाउट एपीआईज एंड उसके बाद थोड़ा डेमो होगा इन पोस्टमैन जिसमें वी विल सी द डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं ऑफ रेस्ट एपीआईज लाइक गेट पोस्ट एंड ऑल. So what are APIs? So API stands for Application Programming Interface. So basically, it is a collection of communication protocol. जो APIs are like a piece of code that make it possible for digital device or software application or data server to talk with each other. Like it is basically a medium for these services or tools to communicate between each other, and it is very essential. Like you can say it's a backbone of all services that we rely on. And if you want to understand API in like the simplest way, then you can consider an example of a restaurant. Like in restaurant, we have a customer, waiter, and a kitchen. So customer generally orders, like talks to waiter and tell him like what they want, and then waiter takes down all the order and communicate it to the kitchen. Then kitchen does their work and create the food, and then waiter delivers that back to the customer, right? So here the customer is our client or front end, whatever you say, and the waiter is the API because it's the communication between kitchen and client, basically, right? And the kitchen is server or like the backend part, right? ये समझ में आ गया ना, like what is API? Like it's basically a waiter, like it help in communicating between two like services and all. Yes, sir. Yeah, right. Yeah, पहले बता दिया, like it helps in communicating between each other, and it takes like user generally request and like it request, then APIs send that request to the server, and then server then respond to that request. Sure. Yeah. So this is the diagram. Like this is the web app or the client basically, or the customer in our example. This request go through internet and API to our web server, and then web server process that request and like take all the inputs that are provided in the request, and then sends back the response, which is like it's simple. Yeah. So, what is REST API? So, REST API is the most important type of API, right? Like it is one of the type of API, and it REST means representational state transfer, and REST API obeys the rule of REST architecture. Like इसका मतलब मैं बताता हूँ 2 मिनट. And yeah, like so what is REST architecture and like उसको use कैसे करते हैं? So when client requests a RESTful API, it transfer the representation of the state of the resource to the endpoint, and this information or representation is delivered in one of several format via HTTP. Uh, like it could be a JSON format, HTML, or plain text also. Yeah, like यहाँ तक समझ में आ गया ना, like what is REST and what is API? Yes, सर sir. एक बार और समझा देंगे सर जरा. API क्या समझना है? सर ये Sir, रेस्ट what वाला एक बार फिर से बता. API? REST वाला REST is basically a type of
एपीआई, और इसमें एक रेस्ट आर्किटेक्चर होता है दैट इज फॉलोड। लाइक उसमें वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट जो कि रेस्पॉन्स के फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम डेटा सर्वर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक जेसन, एचटीएमएल और लाइक दी प्लेन टेक्स्ट। और इसके बारे में अभी आगे और आएगा। सो यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. Okay. Yeah, so this is basically the diagram of REST API. So we request, uh, request contains our URL, the parameters, and some like the headers also. So headers help in authenticating the user that we have, and request also have the like body, uh, request method, and many other things that we will see in some time. And then server responds with the like response to the request that we send. So what is request? Request contains the this get, which is the HTTP method, the URL, the request headers. So request headers contain the like the host name, like what type of data we want, and the other like also the headers like uh, तुम इनको tokens बता दिया क्या? नहीं सर, टोकन्स नहीं बताए। So like there are like various tokens that we can send in headers that help in authenticating the users. So वो हम header में डाल सकते हैं, and it also contains the body जिसमें हम कुछ भी data डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं डेमो में बता दूंगा रिक्वेस्ट के बारे में कि क्या क्या होता है और कैसे काम करता है। एंड देन वी हैव रेस्पॉन्स, लाइक जो हमारे सर्वर हमारे क्लाइंट को भेजता है। इट कंटेन्स लाइक द स्टेटस कोड, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी, नेक्स्ट स्लाइड शायद वही है। एंड जो रेस्पॉन्स में भी सेम होता है, लाइक द हेडर्स एंड द बॉडी, जिसमें लाइक इट कुड बी HTML और JSON, लाइक दी जो हम नॉर्मल वेब पेज एक्सेस करते हैं लाइक google.com, तो वहां से हमको HTML रिस्पॉन्स आता है, तभी हमको एक अच्छा सा UI एंड फ्रंट एंड दिखता है, राइट? सो मैंने बताया था लाइक दीज स्टेटस कोड। सो देयर आर लाइक बहुत सारे टाइप के स्टेटस कोड होते हैं, लाइक इट इट इज अ 3 डिजिट नंबर जो कि लाइक 1xx लाइक 100 होते हैं स्टेटस कोड, 200, 300, तो x could be like anything like 0 to 9, right? So जो status code that starts with 1, they are basically like means the request has been received and are continuous, like उसमें अभी भी processing हो रही है, like वो अभी तक complete नहीं हुआ है, right? Status code समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Like अभी तक समझ में आया? Like feel मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। Like समझ में आ रहा है? 404 client error code होता है उसी हिसाब से। हाँ हाँ, वही वही, लाइक जो 4 वाले होते हैं वो क्लाइंट के एरर होते हैं, जो 5xx होते हैं वो सर्वर साइड एरर, लाइक तुमने कुछ गलत कोड लिख दिया जो कि ब्रेक हो गया, तो उसमें सर्वर एरर हो जाएगा ना, तो उस समय जो ये वाला स्टेटस कोड है वो 500 कुछ होगा, राइट? एंड अगर तुमने देखा होगा जो रिस्पॉन्स लाइक 200, इसका मतलब है कि सक्सेसफुल हो गया एंड यू रिसीव सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस कट हो गया, आई थिंक शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा।
हेलो। यस सर, अब आ रही है। पहले नहीं आ रही थी क्या? सर बीच में बंद हो गई थी सर, पिछले 1-2 मिनट से। 2-3 मिनट का लेक्चर मिस हो। अभी भी नहीं आ रही आवाज सर शायद। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो फिर से आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। एक सेकेंड में चेक कर रही है। वेट करो सब लोग 1 मिनट का। इतना किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, वरना वेट करो बस। हेलो। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ सर, सर अब आ अब रही सर सर, अब अब आ आ रही है। रही है, आगे अब आ आगे। रही है सर। अब मेरे को लगता है मेरे ईयरफोन्स का कुछ दिक्कत है यार। नेट तो मेरा सही है। एक सेकेंड। सर, अब ठीक आ रही है। फक मैन, कहाँ तक सुना यार? सर वो स्टेटस कोड समझा रहे थे आप इन्हें। हम्म, अरे स्टेटस कोड समझ में आ गया ना। 1xx जो होता है इंफॉर्मेशन, लाइक अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है। 200 लाइक इट्स सक्सेसफुल, लाइक सब कुछ हो गया। 300 मीन्स रीडायरेक्शन, लाइक जैसे यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रोफाइल पेज। तुमने लॉगिन नहीं करा है तो यू विल रीडायरेक्ट इट टू अ लॉगिन पेज, राइट? तुम प्रोफाइल पेज नहीं दिखा सकते अभी, तो इट इज बेसिकली अ रीडायरेक्शन कोड। एंड 400 तो पता ही होगा, लाइक इट्स अ क्लाइंट एरर। एंड 500 इट्स अ सर्वर एरर। या स्टेटस कोड समझ में आ गया ना? सर ये रीडायरेक्शन वाला एक बार बता दें। लाइक कभी कभी हमको रीडायरेक्ट करना पड़ता है, लाइक लेट्स से कुछ कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है और उसके लिए हमको रीडायरेक्ट करना पड़ा। लेट्स से तुमको प्रोफाइल पेज पे जाना था, बट तुमने लॉगिन नहीं करा, तो तुमको पहले लॉगिन करना पड़ेगा ना। फिर ही ओके तुम ओके प्रोफाइल ओके पेज ओके। पे जा पाओगे। तो हाँ वो वाला समझ गया। रीडायरेक्शन। ओके। तो ये स्टेटस कोड होता है जो रेस्पॉन्स में आता है, ठीक है। एंड जो एच टी टी पी मेथड होता है, तो तुमको रिक्वेस्ट में बताया था लाइक दीज आर एच टी टी पी मेथड्स। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ, लाइक आई थिंक देर इज वन मोर, लाइक 4 टाइप्स होते हैं: पोस्ट, पुट, गेट एंड डिलीट। सो पोस्ट इज बेसिकली टू क्रिएट एन रो। लाइक हमको जो पूरा रो एक क्रिएट करना होता है तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। when we like need to get the resource, then we use get request. And when we need to update any existing row, then we use put. And whenever we need to delete a row or like some resource, then we use the delete http method. Okay, like REST API enable us to develop all kind of web application, like having all possible CRUD operations. So CRUD तो पता होगा ना, create, read, update, delete. So we can create using the post method, read using the get, update using the port,
put and delete using the delete HTTP method. So जब हम request करेंगे, then we need to mention the HTTP method that we are using according to our need. अगर हमको we need a web page, like we need to request a resource, then we will be using the get request. जब हमको एक रो insert करनी है, then we will be using the post request method, like post HTTP method, right? It's clear, right? Yes, sir. Yeah, finally, demo. Okay. या पोस्टमैन दिख रहा है ना? यस सर। सो पोस्टमैन हम API टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर टूल फॉर API टेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है ना? तो हमने देखा था लाइक हम यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट जो होता है वो बना सकते हैं, लाइक जो मेथड्स होते हैं, लाइक हम गेट, post, put, patch, delete. There are many methods, but these 4 or 5 are the most popular one, HTTP method, and इसी को हम generally use करते हैं. So this is the URL जो हमको mention करना पड़ता है whichever resource we need, right? Like ये वाला तो host name है, and then like यहाँ पे हमने mention कर रखा है कि get all data. So ये पूरा एक URL होता है. फिर इसमें हम हेडर्स में मेंशन कर सकते हैं कि ऑथोराइजेशन कोड इफ वी हैव एनी, राइट? अभी तो जैसे ये ओपन एपीआई है तो वी डोंट नीड एनी लाइक दैट ऑथोराइजेशन की, बट इफ इट्स नॉट पब्लिक देन हमको यहाँ पे ऑथोराइजेशन की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि इस वाले एग्जांपल में कि हमको हेडर में ऑथोराइजेशन की प्रोवाइड करनी पड़ती है बिकॉज दीज एपीआईज आर नॉट ओपन और पब्लिक. सो जब हम इसको ये करते हैं, देखिए अभी भेज रहा है रिक्वेस्ट, तो ये देखो यहाँ पे स्टेटस कोड 200, लाइक इट्स अ सक्सेसफुल हो गया है हमारा रिक्वेस्ट, एंड दिस इज आवर व्हाट्स लाइक द रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है ना? तो ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स समझ में आ गया ना कि ये स्टेटस कोड होता है, दिस इज द रेस्पॉन्स बॉडी, दिस इज द HTTP मेथड, दिस इज द URL, पैराम्स, हेडर क्या होते हैं और बॉडी क्या होती है, ये सब समझ में आ गया ना? हेलो? किसी को डाउट है तो पूछ लो, बता दो, एक बार चैट में लिख लिया करो। और हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं, एक सेकंड रुक. ठीक है, तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, दिस इज द URL, इसमें हमने हेडर्स मेंशन करें एंड इसमें बॉडी भी है. तो ये जो होगा ये मैसेज है, लाइक द होल बॉडी, और ये उस बॉडी का मैसेज है, लाइक इसमें अगर हम चेंज करके, ठीक है, अगर हम इसको अब रिक्वेस्ट को करते हैं तो 201 लाइक इट्स क्रिएटेड, एंड ये हमारे रेस्पॉन्स की बॉडी है, ठीक है ना? तो तुम अभी इस URL पे जाओगे ना, तो तुमको दिखेगा जो ये जो API थी, ये बेसिकली एक गिटहब की API है जिससे हम जो कमेंट्स होते हैं ना उसको पोस्ट कर सकते हैं. तो तुमने देखा होगा जो ओपन कोड बॉट है उसके लिए हम यही API यूज़ कर रहे हैं फॉर कमेंट्स. तुम जब भी देखा होगा तुम PR ओपन करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट कमेंट आता है, ठीक है ना? तो हम यही API यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग कमेंट्स. तो तुम अगर उस पर जाके देखा होगा तो तुमको दिख रहा होगा कि एक कमेंट है यही सेम. सर ये जो नीचे डेटा है वो क्या है एग्जैक्टली? ये जो सर्वर हमको भेजता है लाइक बॉडी में, कि इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि लॉगिन किससे करा है, उसका यूज़र नेम, क्रिएटेड टाइम, जो रिएक्ट, अगर तुम उस पर रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिएक्ट काउंट.
तो हमको ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट? समझा। और इसका कोई फॉर्मेट होता है क्या, लाइक ये फाइल एक्सटेंशन? या जेसन, ये रहा दिख रहा है। और जेसन क्या होता है? मतलब एक्सटेंशन पता है जेसन, बट उसका यूज क्या होता है? लाइक वो मोस्टली ये एपीआईज में हम जेसन ही यूज़ करते हैं। लाइक तुमने देखा होगा, तुमने वेब भी का शायद जेसन ही क्रिएट करा है ना? हाँ, उसमें जेसन ही हम लोग रेपो का लिंक्स अपडेट कर रहे थे। तो इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें लाइक ऐसे की वैल्यू पेयर्स होते हैं और इसमें वैल्यू में तुम ऑब्जेक्ट्स और ये सब बना सकते हो। तो लाइक इससे सारा प्रोसेसिंग जो होता है ना वो बहुत इजी हो जाता है। अगर तुम इसको गेट करके लाइक बॉडी डॉट यूआरएल करोगे तो ये इजीली मिल जाएगा। अगर सिंपल तुम टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजोगे तो प्रोसेसिंग जो होगी वो बहुत हार्ड हो जाएगी करना। तो अभी शायद सार्थक बताएगा ना, तो तुमको उसमें पता लग जाएगा कि जेसन को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता, जेसन को जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ना बहुत इजी रहता है, इसलिए फाइल शेयरिंग में इसको यूज करते हैं जब भी एपीएस के थ्रू करना होता है। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पता चल जाएगा अभी। मतलब एपीआई से हमने ये डेटा रिक्वेस्ट किया। या लाइक इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट ना। अगर हमने गेट में भी हमने वही जेसन ही आया है, तो हमने ये एपीआई को भेजा है और एपीआई से हमको जेसन आया है। लाइक ये तो पेज नंबर है, हमने पेजिनेशन कर रखा है। तुमको पेजिनेशन नहीं पता होगा ना। तो लाइक हम ऐसा हो सकता है ना कि हमारे डेटाबेस में लाइक थाउजेंड्स ऑफ रो है, राइट? तो हमने उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पेज, हमको फर्स्ट पेज ही चाहिए, पूरा सारी थाउजेंड्स ऑफ रो मत दो, हमको सिर्फ फर्स्ट पेज ही दो, राइट? तो इससे हम मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज दो। तो उससे जो फर्स्ट 20 एंट्रीज है, मतलब ये सब तो हमने डिफाइन करा है, तो वही आएगा। और ये जो है, ये हमने एपीआई क्रिएट करी है तुम्हारे एपी के मंथ के लीडर बोर्ड के लिए। तो इसमें तुम डेटा देख रहे हो ना, जो ये अनुराग जैन है वो फर्स्ट है, जिसके पॉइंट से लाइक 200। सेकंड ये है जिसके भी पॉइंट 200 ही है, सबके पॉइंट 200 ही है ना। या ये सेकंड है, उसके भी 170 है। सो ये हमने एपीआई क्रिएट करी है फॉर लाइक हमको जो रोज रिक्वायर्ड है उसी को गेट करने के लिए। इसमें कुछ डाउट है क्या, लाइक हाउ टू यूज? और ये क्रिएट कैसे किया? या तो मैंने बताया था ना, पोस्ट रिक्वेस्ट हम करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो ये एपीआई गिटहब ने दी है, गिटहब की खुद की एपीआई है, जिसमें हम हेडर प्रोवाइड करके ये कर सकते हैं। हमको बस जो बॉडी में ये लिखना होता है कि हमको क्या कमेंट करना है। और ये इसमें ये रेपो रेप ये जो क्या कहते हैं इसको, इतनी रेपो नेम नहीं है, लाइक इट्स दी ऑर्ग यूजर नेम। जैसा गीक हेवन है ना नेम, तो ये ऑर्ग यूजर नेम है। दिस इज दी रेपो नेम। इसमें जिस इशू पे हमको कमेंट करना है उसका इशू नंबर है, और ये हेडर है। तो इस वाले एपीआई से कमेंट्स हम्म, ऑटोमेटिकली जाएंगे? हाँ। मैं जितनी बार इसको क्लिक करूंगा ना, जैसे मैंने एक और बार क्लिक करा, ठीक है ना, तो अगर तू उसको ओपन करेगा तो शायद 2 या फिर 3 कमेंट हो जाएंगे। देख 4 कमेंट्स अभी वहां पे, क्योंकि मैंने 4 बार करा है। समझ में आ गया ना कि पोस्ट वी यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर क्रिएशन, गेट वी यूज फॉर रीड, पुट फॉर अपडेट, डिलीट के लिए तो डिलीट, रिक्वेस्ट समझ में आ गया ना, रिक्वेस्ट समझा सर। एपीआई सब समझ में आ गया ना? यस सर। और ये जो बॉडी वेरिएबल है, हम्म। वो गिटहब के एपीआई का उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या, जहाँ पे ये हाँ लिखा है? हाँ, ये एकदम हम कैसे भी ये डाल नहीं सकते। लाइक उनका एक फॉर्मेट होता है दैट वी नीड टू फॉलो। तो उनके एपीआई में लिखा होगा कि तुम जो ये की है बॉडी, उसमें तुम ये वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो ये कमेंट होगा।
तो ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में ही प्री डिफाइंड है कि ऐसा ही तुमको भेजना पड़ेगा। अगर मैं इसको कुछ भी लिख दूँ ना तो ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ एरर देगा। ये देख 4xx है ना, तो क्या है ये क्लाइंट एरर, राइट? इनवैलिड रिक्वेस्ट। अभी देखा था ना हमने स्टेटस कोड 4xx, तो हाँ क्लाइंट एरर। तो हम ये ऐसे कुछ भी की नहीं दे सकते। और किसी को डाउट है? और ऑटोमेटिकली कैसे कमेंट कर देता है ये भी एक्सप्लेन कर देंगे क्या? जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर रहे हो तो फिर ये मैन्युअली वहां पे जाके अपडेट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कैसे होता है? हाँ, ये ऑटोमेटिकली तो अपडेट कर रहा है ना। हम ये एपीआई को कॉल कर रहे हैं, तो ये एपीआई उनके डेटाबेस में जाके एक एंट्री क्रिएट कर रहा है। हाँ बट एपीआई को तो कॉल हमने किया ना, हाँ तो जो मतलब अगर मैंने इशू नंबर डाला तो फिर एक ऑटोमेटिकली वहां पे आ रहा है ना, हाँ हाँ, तो उसमें तो हमने क्या कर रखा है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ। तो क्या होता है, एक वेबहुक एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, कोई भी तुम इवेंट क्रिएट करते हो ना, मतलब इवेंट एग्जीक्यूट करते हो, तो हम ये वाली एपीआई को कॉल कर सकते हैं। सो तुम जो पीआर जब क्रिएट करते हो तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, लाइक क्रिएट पीआर इवेंट। तो उससे हमने एक एंड पॉइंट बना रखा है हमारे डेटाबेस में, जिसका यूआरएल ये है, मतलब ऐसा ही ये होस्ट नेम है और इसके पीछे एक यूआरएल होता है। उस पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उस पोस्ट रिक्वेस्ट में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हम ये एपीआई भी कॉल कर रहे हैं उसी में। तो हमारा जो बैकएंड है उससे ये वाला एपीआई कॉल हो रहा है। तो एक सेकंड रुको, मैं बता दूं तेरे को बहुत अच्छे से। तो आप बोल रहे हो कि सर्वर को समझ जाता है कि जब भी हम पीआर ओपन कर रहे हैं और फिर वो एपीआई को कॉल करता है। हाँ हाँ हाँ, रुक मैं बता रहा हूँ तेरे को वेबबुक्स। एक सेकंड। ये दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ तो देख, हमने ये दो वेबबुक क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है ना। एक इशू का, एक पुल रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो जब भी तुम कोई भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, तब इसमें इस वाले यूआरएल पे रिक्वेस्ट चली जाती है। तो हमने एक एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रखे हैं हमारे बैकएंड में, जो अलाउ करते हैं कि तुम इस वाले एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कभी भी। एंड फिर हम प्रोसेस करते हैं, एंड गिटहब का जो कमेंट वाला है ना, उसी को वहीं से कॉल करते हैं हमारे बैकएंड से। समझा। और ये हमने इशू वाला भी कर रखा है। तो हमारे इशू वाले में क्या होता है, तुम्हारे जो टैग्स बना रखे हैं ना, जब वो भी इशू नंबर के हाँ अकॉर्डिंग एपीआई हाँ, कॉल होती है। या तो इस वाले इशू नंबर के 292 इशू में 40 पॉइंट्स का एक बन जाता है, लाइक एक एंट्री बन जाती है। रुक, देखो डेटाबेस भी देख ले भाई तू। ले, ये देख 292 इशू नंबर है, उसके उसके उसी में हमने 40 पॉइंट डाल रखा है, और ये रेपो आईडी है। तो ये हमारा एक रो है जिसमें हम इशू आईडी और पॉइंट्स डाल रखा है, और देख देख सकते हो यही है बेसिकली। और समझ क्या ऊपर ऊपर से, बट एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स है। देख हाँ, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। वेबबुक्स तेरे को समझना होगा कि वेबबुक्स होते क्या हैं। जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो इस वाले यूआरएल पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, ठीक है ना। उसके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसने बनाया, किसने वो ट्रिगर करा वो इवेंट। इस केस में होगा कि तूने, लाइक जो भी तेरा यूजर नेम है, कि इसने एक पीआर बनाई जिसके बॉडी में तुमने वो जो भी डेटा लिखा है कि इशू: 1, एंड तुमने जो भी डिटेल्स वो सब देख। एक सेकंड। हम्म, ये वाला कौन सा है? ये इश्यूज वाला है।
ये देख, ये इसका बॉडी है, ठीक है ना। इसमें लिख रखा है कि ये जो इस वाले यूजर ने ये बनाया है, इसके बॉडी में इसकी बॉडी में या इसकी बॉडी में इसने ये लिख रखा है, तो हमको इसी से प्रोसेस कर लेते हैं कि अगर तुमने ये वाली चीज़ नहीं लिखी होती तो हमको पता लग जाता है कि तुमने ये नहीं लिखा है, तो हम कुछ और कमेंट करते हैं। अगर तुमने ये लिखा होता है तो हम कुछ और कमेंट करते हैं, देखा है ना। तो ये इफ कंडीशन थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं हम सर्वर पे। समझे। और किसी कुछ डाउट है क्या? मतलब ये वाला नहीं आया हो तो चलेगा भाई, पहले वाला एपीआई वाला देख लो भाई तुम। एपीआई में किसी कुछ डाउट है क्या? एपीआई में बेसिकली यही मेन चीज़ था कि रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेटस कोड, HTTP मेथड्स, हेडर एंड बॉडी। और किसी को डाउट है क्या? समझ में आया ना? ये बता भाई पहले। हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। अब जिसको कंटिन्यू करना है कर लो यार। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना अगला मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। एपीएस के ऊपर है वो भी। हाँ वो भी एपीआई के ऊपर ही है। तो सर इनको ब्रेक देना 2 मिनट का, शुरू कर देगा। हाँ दे दो, ठीक है। 20 पे स्टार्ट करते, जब तक किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर ये पोस्टमैन से कोई भी फिर तो ऐसे एपीआई कॉल कर सकते हैं क्या, हाँ कम करने के लिए? हाँ, तो तुमको उसमें जो मैंने बताया था ना, ऑथोराइजेशन हेडर में डालना पड़ता है वो की, वो तुम्हारे पास है ही नहीं ना। तो तुम कैसे कर पाओगे? अगर तुम्हारे पास वो की है तुम्हारी खुद की, तो कर सकते हो तुम। और की तुमको मिल जाएगी तेरी, अगर तेरे को तेरी की चाहिए ना, तो तेरे को सेटिंग्स में जाके मिल जाएगी, गिटहब की सेटिंग्स। समझा। तो देखना, उनको गिटहब वालों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना जब तक तू कमेंट कर रहा है, क्योंकि तेरी की है वो, तूने शेयर नहीं करी है ना। तो उनको क्या प्रॉब्लम होगा कि तू कुछ भी कर उसके साथ, कमेंट कर, कुछ भी कर, रेपो क्रिएट कर। समझा। एंड मैंने बताया था लाइक इट इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट द यूज़र, ठीक है ना। तो मेरी की अलग है, तेरी की अलग है। अगर मैंने मेरी की प्रोवाइड करी तो उनको पता लग जाएगा कि ये घर में थोड़ा है यूज़र नेम, ठीक है ना उसका, क्योंकि इस की के अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है कि कौन सा यूज़र है। भाई इतने कम लोग क्यों हैं यार आज? क्या समझ में आया कि नहीं आया यार, पहले ये बताओ। ऐसा फील आ रहा है यार बहुत कम की है। हाँ, समझा। तू तो समझ गया भाई, दूसरे लोग समझे कि नहीं समझे यार? हाँ सर, समझ गया सर। सर आया। सबके पास माइक परमिशन है, किसी को बोल के कुछ पूछना है पूछ लो अभी। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा है तो ठीक है, मतलब तुम यूट्यूब की वीडियो देखना तो थोड़ा और समझ में आएगा। एपीआई वाला मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है ना। सर अपडेट लाइक जैसे आप लोग रीड में समझ में नहीं आया यार मेरे को एक क्वेश्चन। मेरे को भी नहीं आया। माइक ऑन करके बोल दो अगर बोल सकते हो तो। शायद इसका क्वेश्चन ये है कि हम अपडेट से क्या करते हैं, यही क्वेश्चन है ना। यही होगा। हाँ हम्म। तो देख, हमारे पास एक जैसे मैंने अभी तुमको बताया था ना, एक रो जिसमें था इश्यू नंबर और पॉइंट्स, ठीक है ना। तो हम मेरे को वो अपडेट करना है, ठीक है ना। फॉर अ गिवन इशू आईडी मेरे को पॉइंट्स इंक्रीज करना है टू 50। तो इसके लिए हम पुट HTTP मेथड यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। हाँ
मेरी एपीआई की और तेरी एपीआई की अलग होगी। और नहीं, कमेंट तो तू भी कर सकता है, लाइक तू बहुत सारे एडवांस फीचर्स यूज नहीं, मतलब एडवांस फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर पाएगा फॉर geekheaven org। लाइक बहुत सारी होगी, लाइक तू वेब बुक क्रिएट नहीं कर सकता है, मैं वेब बुक क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना, तू वो सब चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो एपीआई की से मैंने जैसे बताया कि गिटहब को पता चल जाता है कि कौन सा यूज़र है, तो उनके परमिशंस भी पता लग जाएंगे कि ये यूज़र क्या क्या कर सकता है। सर हमें पोस्टमैन अलग से सीखना पड़ेगा। हेलो। सीखने कुछ नहीं है यार उसमें, मतलब एक बेसिक टूल है यार फॉर एपीआई टेस्टिंग एंड ऑल। मीन्स उसमें एपीआई बनाने की होती है। नहीं नहीं, बनाने की नहीं होती है, टेस्टिंग के लिए होती है, बनाना नहीं होता उसमें। बनाना तुमको तो अब ये सिखाएगा। तुमको अभी एपीआई बनाने नहीं है। एपीआई बनाने का काम होता है बैक एंड में। वो तुम्हारी जो लास्ट वर्कशॉप होगी उसमें बताएंगे बेसिक। अभी तुमको बस एपीआई कॉल कैसे करना है वो बताया जाएगा, जैसे कि सर ने सबसे पहले बताया था मैसेज, तुम्हें वो देखना है बस। बनाते तुम नोड जेएस से हो या जेंगो से बैकएंड में बनाते हो। और किसी को कुछ डाउट है क्या एपीआई में? जो इंट्रो है, लाइक इट्स सब बेसिक, ठीक है ना, तुमको समझ में नहीं है। परमिशन को डिसाइड करते हैं, मतलब हर यूजर का अलग अलग परमिशंस होता है ना, तो मेरे को परमिशन दिया हुआ है। इसने लाइक वो मैनुअली देते हैं ना गिटहब में। एक सेकेंड मैं बताता है। ये देख, यहाँ पे पीपल्स में लिखा होता है ना कि किसके पास कौन कौन सी परमिशन है। ये मेंबर है, लाइक मेंबर्स का अलग परमिशन होता है, जो ओनर्स होते हैं उनके पास अलग परमिशन होता है, जो ओनर्स जैसे कि मैं ओनर हूँ, ठीक है ना, तो मैं वेब बुक्स और ये सब भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये सब मैनुअली अपडेट करना होता है, लाइक मैं किसी को भी जैसे ऐड कर सकता हूँ, तो उनकी मेंबर की अलग अलग परमिशंस होती है। तो मैं इन जैसे ये अभय का, मैं इसको ओनर दे सकता हूँ जिसमें फुल एक्सेस होगा। तो ऐसे हमको मैनुअली चेंज करना होगा सबके। लाइक सर मतलब मेंबर्स ही आपस में चलते हैं। क्या? लाइक मेंबर्स ही मतलब एक दूसरे की ऑथराइजेशन चेंज कर सकते मतलब इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लाइक तुम्हारे पास कोई भी रोल नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेंबर्स के पास कुछ रोल है तो वो कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लाइक रेपो क्रिएशन एंड ऑल। जो ओनर होते हैं उनके पास और ज़्यादा परमिशंस होते हैं, लाइक क्रिएटिंग वेब बुक्स एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सारी रेपोस का एक्सेस होता है उनके पास। समझ में आया ना, लाइक परमिशन कैसे हैं। देते लाइक हो? आप अगर किसी रैंडम पर्सन को परमिशन दे सकते हो मतलब हाँ हाँ, मैं किसी को भी कुछ भी बना सकता है, मैं ओनर हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हाईएस्ट ओनर है। हाँ हाँ, ये सुन। समझ में आया ना, लाइक कि कौन डिसाइड करता है परमिशन एंड ऑल। तो गिटहब के पास डेटाबेस में ये सब सेव्ड है कि मैं ओनर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने जो ऑथोराइजेशन की दी है उससे उनको पता चल गया कि कौन सा यूज़र है एंड उसके पास कौन कौन सी परमिशन है, और वो ये वाली परमिशन कर सकता है क्या। अगर कर सकता है तो 200 हो जाएगा स्टेटस कोड, अगर नहीं कर सकता है तो कुछ और स्टेटस कोड हो जाएगा। सर एक से ज्यादा ओनर्स हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, हो सकते हैं। फिर मेंबर्स में फिर फर्क क्या होगा? क्या? मेंबर्स के पास सारी परमिशन नहीं होती ना। देखो जैसे हम लोग मेंबर्स हैं, लाइक हम लोग जो विंग के जो मेंबर्स होते हैं, तो हम लोग बस रेपोस बना सकते हैं या रेपोस को मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, वो हमको लाइक अपने रोल से हटा सकते हैं। लाइक दे हैव, जैसे डिस्कॉर्ड में रहता है ना, या व्हाट्सएप में ऐसे कोई एडमिन रहता है तो उसके पास सारी पावर है, कुछ वैसे समझ लो ओनर। और उसके नीचे फिर मेंबर का रोल आता है, उसमें कुछ पावर्स होती हैं। ऐसा काफी सिंपल है, वही 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 डिस्कॉर्ड समझ लो। हाँ, अब अभी वो जो नेक्स्ट जेसन पार्ट है रीड करना सिखाएंगे क्या? क्या? जेसन इंटरप्रेट करना। हाँ हाँ, बताएंगे वो, अभी बताएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट किसका है वो स्टार्ट कर दो। मैं हाँ सर, करता हूँ मेरा। start सर। अच्छा चलिए होस्टिंग का इसके बात करेंगे। अच्छा, सही है। लेकिन होस्टिंग की तुमसे कुछ ज़रूरत है क्या? लाइक फॉस ने शायद बता दिया था ना गिटहब पेजेस। उसके बाद भी बहुत डाउट आ रहे थे, सोचा सर एक बेसिक बेसिक बता ही दे कैसे करना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और कोई भी ऑल्टरनेटिव फ्री वे होता है क्या? हीरो को। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ चलो फिर अब अगले पार्ट से शुरू करते हैं हम। एक second। तो इस पार्ट में अभी तुमने एपीआईज के बारे में पढ़ा, एपीआईज क्या होते हैं वो सब कुछ समझा। अब एपीआईज का मतलब मेन यूज तुम जब अपनी बनाओगे वेबसाइट फ्रंट एंड के लिए, तुम ये करोगे, तुम बैक एंड से डाटाबेस से वो उठाओगे डाटा, यहाँ पे ये डाटा स्टोर है, मेरे को अपनी साइट पर ये दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर वो बताए, अभी वो बताऊंगा मैं। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे। एक इनबिल्ट फीचर होता है जावास्क्रिप्ट में जो तुम्हारा ब्राउजर्स में होता है, वो होता है फैच एपीआई। फैच एपीआई से तुम किसी भी एपीआई से डाटा वगैरह फैच कर सकते हो, अगर तुम्हारा परमिशन है फैच करने की तो अब जो फैच का मेथड होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, ज़्यादा नहीं है। उसमें तुम्हें जो यूआरएल है, जो एपीआई यूआरएल है, जो भी सर ने दिखाई थी ओपन कोड ट्रिपल ITA /issue /कमेंट जो भी था वो यूआरएल यहाँ पे डालोगे तुम। मेथड, तुमने मेथड्स के बारे में अभी पढ़ा कि गेट होता है, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो यहाँ पे तुम स्पेसिफाई करोगे क्या मेथड है। अगर तुम्हें यूज करना है गेट, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है ना वो गेट ही होता है। तो तो बाय डिफॉल्ट तुम हटा भी सकते हो अगर तुम्हें सिर्फ यूज करना है मेथड में गेट। तो अब हम देखते हैं कि जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती है ना, वो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कुछ टाइम लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट डाली, वो रिक्वेस्ट बैकएंड के जो सर्वर है वहां पर गई, फिर वहां से जो रिक्वेस्ट ने हमें जो डाटा देना है वो प्रोसेस करके डाटा दिया, तो इसमें कुछ लगता है टाइम। तो वो टाइम जब लगता है तो डाटा हमारे पास एकदम अवेलेबल नहीं होता है। डाटा अवेलेबल होने में कुछ कुछ लगता है टाइम हमें। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक रिक्वेस्ट डाल के दिखाता हूँ। तो जैसे हमने अभी सिंटैक्स देखा था फैच का, तो फैच लिखेंगे हम, यूआरएल मैंने ऊपर यूआरएल वाले कांस्टेंट में स्टोर कर रखी है, और मेथड देंगे हम गेट। तो ये सिंटैक्स बेसिक सिंटैक्स है, इसमें कुछ डाउट होना तो नहीं चाहिए, पर है तो देख लेना, पूछ लो। ये अब मैंने इसको सेव किया और मैं इसको करता हूँ रन। तो हो गया। अब ये जो हम अब चेक करते हैं ये फैच ने हमें क्या, जो ये फैच हमें कुछ ना कुछ करेगा रिटर्न, कुछ डाटा डाटा रिटर्न करेगा क्योंकि हमने इससे मांगा ही डाटा है। तो चेक करते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। सबसे पहले उस डाटा को एक कांस्टेंट में स्टोर कर देते हैं, लेट कांस्टेंट आए, फिर उसको कांस्टेंट को प्रिंट कर देते हैं। चेक करते हैं कांस्टेंट के अंदर क्या स्टोर है। ये देखो ये कांस्टेंट में आ रहा है प्रोमिस और पेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं एक बारी। जैसे तुमने अभी देखा तुम्हारा प्रोमिस पेंडिंग आया, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि तुमने जब फैच किया डाटा तो अभी बताया था कुछ कुछ टाइम लगता है डाटा आने में, 1 सेकंड 2 सेकंड मिली सेकंड जितना भी लगता है। तो जो फैच हमें रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है प्रोमिस हमें। प्रोमिस क्या होता है,
इतना इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोमिस बेसिकली ये होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जो हमने डाटा मंगवाया है बैक डाटाबेस से, वो स्टोर होएगा, पर एकदम नहीं होगा। किसी एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, किसी फ्यूचर पॉइंट पे उसके अंदर वो डाटा स्टोर होएगा, इसकी गारंटी है, पर एकदम नहीं होएगा। तो अब वो उस पॉइंट पे आने के लिए वो प्रोमिस के अंदर जब वो डाटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं देन मेथड। ये मेथड ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बस ये इट मेक्स श्योर, ये श्योर कर देगा कि प्रोमिस के अंदर जो डाटा आया है, वो जो डाटा वो प्रोमिस तुम्हारा फुलफिल हो जाए। प्रोमिस के अंदर जो प्रोमिस दिखाया था कि प्रोमिस पेंडिंग है, वो पेंडिंग की जगह प्रोमिस फुलफिल हो जाए तुम्हारे डाटा के साथ बिफोर एग्जीक्यूटिंग। उसके आगे वाले कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले जो डाटा है वो तुम्हारे पास आ जाए। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये फैच ने तुम्हें प्रोमिस किया रिटर्न, तो उसके बाद आगे तुम उसके आगे मेथड लगा दोगे डॉट देन। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को हटा के डॉट देन मेथड लगा दूं, अब यहाँ पे मैंने ये एरो फंक्शन यूज किया है, जैसे तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट की। रिस्पॉन्स इसका पैरामीटर है, जो फैच का जो प्रोमिस होगा, जो रिटर्न करेगा, वो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब हम एक चेक करते हैं इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया है, प्रोमिस फुलफिल हुआ है हमारा या नहीं हुआ, वो चेक कर लेते हैं। console.log आई नहीं आएगा? नहीं, अब हम जो कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स जो हमारा ये फैच मेथड ने जो हमें रिटर्न किया है, ये चाहे तुम इसको अब हटा दो। अब जो फैच ने रिटर्न किया है ना, वो डॉट देन कैच कर लेगा और उसको रिस्पॉन्स के अंदर दे देगा जो प्रोमिस है, और डॉट देन वेट करेगा जब तक तुम्हारा प्रोमिस फुलफिल ना हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अब तुम्हारा प्रोमिस पेंडिंग नहीं आएगा। ये सॉरी, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट अ सेकंड। स्टोरी वो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, कोई रिस्पॉन्स कर दो कोई भी। हेलो, हाँ सर दिख रही है। यस सर। वो एक सेकंड, वो एपीआई की लग गई थी गलत वाली, ये एपीआई की में एक सेकंड रिस्पॉन्स। अब ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया यहाँ पे। अब रिस्पॉन्स तुम्हें अभी जैसे बताया था सर ने, काफी कुछ होता है उसके अंदर। अब ये देखो, जो सर ने बताया था रिस्पॉन्स के अंदर तुम्हारा स्टेटस कोड ये रहा, यहाँ पे 200 आ गया, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ठीक हुआ। 200 कोड का मतलब वही होता है। और रिस्पॉन्स के अंदर तुम्हारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो तुमने डाटा, जो तुम्हारा बैक एंड है, जो तुम्हें डाटा सेंड किया है, जो तुमने डाटा मंगवाया था एक्चुअली, वो तुम्हारा बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और बाकी ये हेडर्स वगैरह सर ने बताया था, ऑथोराइजेशन की वगैरह इनके लिए यूज होती है, तो इस पे अभी इतना डीप जाना नहीं है तुमने। ये तुम्हारे जो भी मेन काम आएगा, एक तो आएगा ओके। ओके में अगर ट्रू आ गया तो तुमने जो अपना ये फैच एपीआई यूज की है, वो तुम्हारा एपीआई तुम्हारा ठीक से तुमने यूज कर लिया है, वो तुम्हें रिस्पॉन्स डॉट ओके बताएगा। और जो स्टेटस कोड तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा क्या स्टेटस आया, 200 आया, 400 आया, कुछ एरर आ गया, वो सब कुछ। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। हमने अभी देख लिया कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या होता है।
जैसे कि ओके, अभी इसके बारे में बताया कि ओके बताएगा हमारा रिस्पॉन्स वाज सक्सेसफुल और नोट। ऐसे ही हमें जो बॉडी बताएगी, बॉडी के अंदर जो डाटा स्टोर है वो बॉडी के अंदर होगा। एंड सेम फॉर स्टेटस, स्टेटस हमारा स्टेटस कोड स्टोर करेगा। इनको एक्सेस करने के लिए ये जो रिस्पॉन्स है एक ऑब्जेक्ट ही है जेएस का। अगर मेरे को ओके एक्सेस करना है तो मैं रिस्पॉन्स डॉट ओके लगा कर लूंगा, जो तुमने एडवांस जेएस में पढ़ा ही था। तो ट्रू, हमने अभी चेक किया था ओके की वैल्यू ट्रू थी तो रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू आ गया। एंड सेम गोज फॉर स्टेटस 200। अगर तुम्हें ऐसी कुछ स्टेटस कोड या ओके एक्सेस करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो वो। अब हमने जो मेन डाटा मंगवाया था वो तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में है, तो मेन तो हमारा जो काम है इससे ही होगा। तो एक काम करते हैं, हम डॉट बॉडी प्रिंट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने डॉट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिख दिया, वो सब कुछ कर दिया। फिर अब ये देखो, ये दिख रहा है किसी को? यहाँ पे आ रहा है रीडेबल स्ट्रीम। अब ये क्यों आ रहा है? रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में तो हमारा जो डाटा है वो होना चाहिए था, तो ये क्यों आ रहा है इसको देखते हैं एक बारी। अब जो हमने डाटा रिक्वेस्ट किया था, सबसे पहले तो अब इस एपीआई के यहाँ पे क्या डाटा स्टोर है वो दिखाता हूँ मैं। ये एपीआई है, तो इसके यहाँ पर ये डाटा स्टोर है। ये एपीआई तुम भी यूज कर सकते हो यहाँ पे आके, swapy.dev पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस एपीआई में ये डाटा स्टोर है, तो ये डाटा हमारा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में आना चाहिए जितना मैंने बताया उसके हिसाब से अभी तक। तो इस एपीआई में ये डाटा स्टोर है, पर ये क्यों नहीं आया अब देखते हैं। हमारा जो डाटा है ना यहाँ पे, ये स्टोर है जेसन फॉर्मेट में, तो मैं बताया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। पर जो ये और ये डाटा, और अब हमको इस जेसन को एक जेएस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट है वो जेसन फॉर्मेट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसको अपने ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डॉट जेसन मेथड। तो जैसे ही हमारे पास अब ये रिस्पॉन्स आया तो हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स के ऊपर डॉट जेसन मेथड लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा रिस्पॉन्स की बॉडी लेके ये डॉट जेसन उसको कन्वर्ट कर देगी एक जेएस ऑब्जेक्ट में। पर एक जेसन में अब एक और बात आती है कि जो जेसन मेथड है ना, वो रिस्पॉन्स को रीड करके एक प्रोमिस रिटर्न करता है, प्रोमिस जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो अगर तुम्हें याद हो कि प्रोमिस क्या करता है, हम प्रोमिस से कैसे डील करते हैं, तो बता दो एक बारी, कोई बोल के बता दो, किसी को याद हो तो प्रोमिस को कैसे करते थे। 10 लगाता है उसके बाद और फिर वो वेट करता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब उसको हम प्रोमिस दिया है तो हम आगे डॉट देन लगाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे डॉट देन कीवर्ड लगवाया और सेम मेथड, अब जो मैंने वेरिएबल बना दिया डाटा नेम से, और एरो फंक्शन बना दिया जैसे ऊपर बनाया था डाटा। अब पर ये बात है, जो फैच हमने जो मेथड लगाया था वो एक प्रोमिस करता था रिटर्न। अब हमें यहाँ से ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना पड़ेगा रिटर्न, ताकि ये जैसे यहाँ से रिटर्न हुआ डॉट देन ये कैच कर लेगा। और इसने ये लिया। अब हम चेक करेंगे कि जो इसने रिटर्न किया वो डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे ही जो फैच ने रिटर्न किया था रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हुआ था। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग डाटा करेंगे, ये देखो, अब हमने जैसे कंसोल डॉट लॉग वो किया डाटा, तो हमें हमारा जो डाटा यहाँ पे स्टोर था, ये काउंट 82, नेक्स्ट, ये प्रीवियस रिजल्ट्स, वो सभी का सभी डाटा हमारे पास उधर आ गया। हाँ सार्थक, सॉरी एक सेकंड, ये लोग कह रहे हैं वीएस कोड में थोड़ा जूम करने को, तो कंट्रोल और प्लस दबा दो।
थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देंगे, इनको दिख नहीं रहा है। हाँ सही, मस्त। साइड बार कर दूं, अब दिख रहा है? हाँ बढ़िया, नाइस। हाँ तो यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ पे डॉट देन क्यों यूज किया था हमने, ताकि प्रोमिस को जब तक वो फुलफिल ना होए वो उसका वेट करे और उसके बाद आगे का कोड चले। जब तक प्रोमिस फुलफिल नहीं होगा यहाँ पे रुक जाएगा कोड। रिटर्न ऐसे की ही जगह पे नहीं लिख सकते थे क्या? मतलब रिटर्न हटा के डॉट देन इसके आगे जेसन के। नहीं, डॉट देन ऐसे नहीं लिख सकते थे। ये प्रोमिस चेनिंग होती है पूरी, वो ऐसी ही होती है प्रॉपर। तो मतलब ये मान लो सिंटैक्स है एक तरह तुम्हारा, जैसे तो जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हमने जब कंसोल डॉट लॉग डाटा किया तो हमारे पास जो डाटा था वो आ गया। वो प्रॉपर जो भी डाटा वह बैकएंड पे इस एपीआई में स्टोर था, इस पर्टिकुलर एपीआई पे, वो डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पे। अब ये वाला डाटा मेरे पास इस डाटा वेरिएबल में स्टोर है। अब इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं अपनी ऐप में यूज करूँ या और कई वेबसाइट में यूज करूँ, कहीं भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि तुम सब ने अभी DOM तो पढ़ा ही था कि DOM को हम वो कैसे करते हैं, मैनिपुलेट यूजिंग JS। अभी टास्क 3 भी तुम्हारा इसके ऊपर ही था, याद है ना सबको, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट ऑब्जेक्ट बाय आईडी करके। हाँ ये याद है ना सबको। तो अब ये देखो, मैंने यहाँ पे एक स्पैन को एक आईडी दी है 1 की। तो अब क्या करते हैं, ऊपर एक बना लेते हैं, एट फॉर एग्जाम्पल GH इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो मैंने आईडी पास करी थी 1, क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पर 1 दी है। अब अगर मेरे को इसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो मेरे को यूज करना है अपनी साइट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, GH डॉट इनर HTML। इनर HTML प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में। तो मैं इसकी इनर HTML सेट कर सकता हूँ डाटा। अब डाटा हमारा कैसा है, डाटा हमारा है ये फॉर्म में, ये अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया एज सच। देखो, तो ऑब्जेक्ट की मुझे कोई फील्ड एक्सेस करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट लगा के फील्ड का नाम दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाटा के आगे डॉट लगा के काउंट दे दूं और ये सेव कर दूं, अब ये देखो काउंट की वैल्यू 82 है, तो यहाँ पे उस वाले में उसके अंदर 82 आ गया जो मैंने वहाँ पे स्पैन दिया हुआ था। और अगर ऐसे ही मैं काउंट की जगह मुझे कुछ और यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये रिजल्ट्स, डाटा डॉट रिजल्ट्स, अगर मेरे को ये करना है, अब इसके अंदर एक चीज देखना, जो डाटा डॉट रिजल्ट्स है ना वो एक एरे है। अब एरे की कोई भी अगर हमें इंडेक्स वो एक्सेस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मेरे को 0 इंडेक्स यूज करना है वो करेंगे, तो इससे हम डाटा डॉट रिजल्ट्स के फर्स्ट वाले के अंदर आ गए। अब फर्स्ट वाले के अंदर जो भी होगा हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मेरे को नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो डाटा डॉट रिजल्ट्स डॉट नेम, कंट्रोल S, और ये नेम, ये नेम देखो तुम्हारा यहाँ पे यही नेम लिखा हुआ था जो तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब तुम ऐसे कोई भी API से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो जिसकी मतलब जो जिसका तुम्हें परमिशन है। ये जो API है ये ओपन API था, तो मैंने इसे एक्सेस कर लिया। अब ऐसे ही हम और कोई ओपन API हो तुम उससे एक्सेस कर सकते हो, तुम्हारी जितनी भी वैल्यू है सब कुछ डाटा के अंदर आ जाएगी। फिर उसको अपनी साइट में DOM मैनिपुलेशन के थ्रू उसकी जो डाटा वगैरह है वेरिएबल्स के अंदर यूज कर लो अपना। तो सर अपन एक बार में पूरी एरे का डेटा ले सकते हैं क्या? हाँ, तुम एक बार के अंदर पूरी एरे का डेटा तुम्हें डेटा डॉट रिजल्ट्स में मिल जाएगा। अब अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूं, ये इस एरे के अंदर, इस एरे की क्या लेंथ थी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी लेंथ थी 10, तो लेंथ 10 आ गई। अब तुम्हें उसको
अपनी ऐप में यूज करना है तो वो फोर लूप लगा के अपने हिसाब से तुम्हें जैसे जैसे यूज करना है तुम वैसे यूज कर सकते हो। फोर लूप लगा के न्यू एलिमेंट क्रिएट करो, फिर उन सबका नेम यूज करना है, वो यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो। एरे के अंदर जाने के लिए तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेगी, वो तुम्हें पता ही है क्योंकि हर जगह वैसे ही होते हैं। और उसके बाद तुम उनके अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो किसके थ्रू। अब नेम के अलावा अगर मेरे को बर्थ ईयर चाहिए था तो बर्थ ईयर जो एग्जैक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है मैं वही डॉट के आगे वो लगा दूंगा और ये बर्थ ईयर आ गया। अब बेसिकली इसके अंदर तो इतना ही था। अब तुमने ये एपीएस के सीखा, तुमने कि मेथड कैसे डालते हैं गेट वगैरह। अब तुम जब भी यूज करोगे मोस्टली तुम्हारा जो डाटा होगा ना वो होगा इस फॉर्मेट में। अब तुम्हें इस फॉर्मेट के बारे में पता है तो तुम ये मेथड यूज करके फैच एपीआई यूज करके तुम कहीं से डाटा ले सकते हो, फिर उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें फैच एपीआई इसमें हेल्प करता है। और तुम्हारा जो कल कॉन्टेस्ट होएगा, जो कल अभी 1 घंटे में कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है, तो उसमें तुम्हें फैच एपीआई का ही मेन यूज आएगा। हम तुम्हें एक एपीआई देंगे, तुम्हें उससे जो डाटा फैच करना है और उसको अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे शो करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ था। अब इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। एक बार HTML फाइल शो करो। जस्ट ये तो बेसिक HTML फाइल है बिल्कुल। Okay. और किसी को भी डाउट है तो बताओ इसमें, क्योंकि एपीएस में तो इतना ही पार्ट था जो तुम्हें बताना था मैं। बाकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट भी तुम यहाँ से डाल सकते हो गेट की जगह, पर उसके लिए तुम्हारा पोस्ट परमिशन वगैरह या सर ने बताया था ऑथराइजेशन की वगैरह होनी चाहिए। तो वो सब कुछ थोड़ा एडवांस पार्ट में आ जाता है जो तुम मोस्टली पढ़ोगे तुम जब बैक एंड सीखोगे या फ्रंट एंड में काफी डीप जाओगे। जो बेसिक तुम्हारी फ्रंट एंड साइट्स वगैरह होती है तुम इससे बना सकते हो। बैक एंड से कॉल किया डाटाबेस, तुम्हें डाटा मिल गया और फिर उसको अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया। मेन काम इतना होता है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बारी। देखो अब ये वाला पार्ट ना काफी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे कल कॉन्टेस्ट में काम आएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर कल हम बाद में इतना बताए ना बताए कॉन्टेस्ट के बीच में उसकी गारंटी नहीं है। तो ये सबको समझ आ गया? रिप्लाई वगैरह कर दो चैट में, फिर अगले पार्ट में एक चलते बार शो करो सर। हैं। स्क्रीन शेयर करनी है? हाँ यस सर यस। जस्ट सेकंड, पूछो। क्या पूछना है इसमें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ yes sir. Means once again explain that all in very short time sir, very short time I have done. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या था, तुम्हारे पास एक एपीआई यूआरएल है, जो यूआरएल ये है, उसको मैंने एक जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मेथड होता है फैच, उसमें मैंने यूआरएल पास करी और जो मेथड मैंने यूज करना था वो मेथड पास कर दिया। Okay sir. उसने मेरे को एक प्रोमिस रिटर्न किया, तो प्रोमिस को फुलफिल होने में कुछ लगता है टाइम, तो ये डॉट देन है उतने टाइम वेट करेगा जब तक तुम्हारी प्रोमिस फुलफिल नहीं हो रहा है। फिर जैसे ही तुम्हारा प्रोमिस के फुलफिल हो जाएगा तो जो तुम्हारे पास एपीआई से जो तुमने रिक्वेस्ट किया तो जो डाटा वापस आया वो रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। ओके ठीक है। तो फिर अब रिस्पॉन्स के अंदर जो तुम्हारा मेन जो होता है ना वो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी होती है, क्योंकि सारा डाटा उसके अंदर है जो तुमने रिक्वेस्ट किया था।
और वो जो डाटा होता है वो होता है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए तुम यूज करते हो डॉट जेसन मेथड। ये क्या करता है, ये और promise which case में हाँ, और अगर दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में मतलब in the place of JSON we can convert into another language. हम इसको जेसन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डाटा जेसन में है, हम जेसन से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके ओके अब ऐसे तुम्हारा तुम कोई जेसन डाटा की जगह इमेज में तुम्हारे पास डाटा वापस आता, तो तुम उस टाइम पे कुछ और यूज करोगे, डॉट जेसन यूज नहीं करोगे। अभी तुम जो बेसिकली तुम्हें जो अभी जितना काम आएगा ना, उसमें तुम्हारा जो जितना भी डाटा स्टोर होगा वो होगा जेसन में। तो अभी के लिए तुम्हारे पास ये मेथड सफिशिएंट है। ओके ठीक है ओके सर। तुषार, रिक्वायरमेंट्स प्रोमिस फुलफिल होने की ये होती है कि मान लो तुमने कोई रिक्वेस्ट भेजी है बैकएंड पे, अगर तुम्हारी जो रिक्वेस्ट ही रोंग हुई तो वो प्रोमिस फुलफिल नहीं होगा, वो प्रोमिस रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में कि तुमने कोई रिक्वेस्ट ही डाल दी, गलत रिक्वेस्ट डाल दिया, तुम्हारे पास ऑथराइजेशन की नहीं है उस रिक्वेस्ट के लिए, तो उस केस में प्रोमिस फुलफिल नहीं होएगा, या कुछ सर्वर एरर आ गया उन केसेस में, वरना प्रोमिस मोस्टली फुलफिल हो जाता है। अब अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है तो हम एक बार होस्टिंग वाले पार्ट में चले जाते हैं। उसमें तुम्हें होस्टिंग के बारे में बहुत लोगों के डाउट आए थे कि वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, ये नहीं हो रहा, तो तुम्हें बेसिक बताएंगे शैलेश। हाँ गाइस सही है, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सर स्टैटिक होस्टिंग और डायनामिक होस्टिंग में डिफरेंस क्या है? बताएंगे अभी। दिखा देता हूँ। स्ट्रीम सही है ना? सही है। नाइस ओके। तो गाइस ये है मॉड्यूल 7 होस्टिंग अ स्टैटिक वेबसाइट। तो ये तुम लाइक मोस्ट ऑफ यू लाइक ऑलरेडी मेरे को पता ही है स्टैटिक लाइक होस्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बारे में ज़्यादा लाइक पता है, बस 5 मिनट 10 मिनट देना चाहिए। Cool. तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू होस्टिंग। Now hosting refers to publishing your website to the web so that anyone anywhere in the world can type a URL into their browser और फिर तुम्हारी वेबसाइट से इंटरैक्ट कर पाए। Now, how hosting works. Hosting isn't a piece of cake, not for the server anyways. तो यहाँ hosting का कैसा पूरा प्रोसेस है वो एक यहाँ इमेज में बताया गया। तो सबसे पहला है कि you come to a browser, sends a request to the website server. ये रिक्वेस्ट पोस्ट और ये सब तो अभी API में बताया गया है। Now the web server receives the request. अब वो वेब सर्वर उसका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है और वो ब्राउजर तुम्हारा कंटेंट को डिस्प्ले करता है। दिस इज होस्टिंग इन लाइक बहुत सिंपल से प्रोसेस में। बढ़िया। सो और तुम सबने स्टैटिक वेबसाइट तो सुना ही होगा अभी टर्म, और अब एक नया टाइप की वेबसाइट है डायनामिक वेबसाइट। अब इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट का थोड़ा सा डिफरेंस कि स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। डायनामिक वेबसाइट में कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन बी चेंज्ड। फिर स्टैटिक वेबसाइट में नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस, डायनामिक में डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। फिर स्टैटिक वेबसाइट में इट्स फास्टर टू लोड, डायनामिक थोड़ा सा स्लो होता है। स्टैटिक वेबसाइट इज मच चीपर टू डेवलप देन डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट को सिंपली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बना सकते हैं, जबकि डायनामिक वेबसाइट में कोई बैकएंड का कोई लैंग्वेज चाहिए रहता है। Now, same content is delivered every time the page is loaded in static website. जैसे तुम सबने अभी अपनी CV और कुछ टास्क के जो वेबसाइट्स बनाए थे और जो तुमने होस्ट किए थे, तो उसमें सेम पेज बार बार लोड हो रहा था ना। तो और डायनेमिक वेबसाइट में हर एक बार तुम इसे रिफ्रेश करोगे तो कंटेंट चेंज हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। सही। तो static websites use static content. Any content of or file can be served as static content as long as it does not change in response to the user's actions or inputs. मतलब
कि कोई भी कंटेंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं जब तक वो यूजर्स के एक्शन से चेंज ना हो जाए। मतलब अगर यूजर ने कोई जैसे बटन क्लिक कर दिया, कुछ अपना इन्फो एंटर कर दिया, और वो अगली बार वो सेम पेज खोल रहा है, लेकिन उसको फिर कुछ और चीज दिखाया जा रहा है उस कंटेंट की जगह, तो फिर वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं रह जाएगा। इसलिए सेम कंटेंट हर बार आना चाहिए, और जैसे सेम इमेजेस, सेम टेक्स्ट, सेम वीडियोस, तो ये सारा हो जाता है स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट। अब आते हैं जैसे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स के उसमें कंपैरिजन। तो स्टैटिक वेबसाइट है अप्रोक्षा की वेबसाइट, जो सेम वेबसाइट है, कांस्टेंट रहती है, जिसको बस तुम देख सकते हो, उसमें एनिमेशंस और वो सारे हैं, काफी लाइक अच्छी दिखती है वेबसाइट, लेकिन तब भी वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। और डायनामिक वेबसाइट जैसे facebook.com, यहाँ पे जैसे तुम्हारी फीड या तुम जो भी सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग तुमको रिजल्ट्स आते हैं ना, जैसे तुमको यूट्यूब में लाइक रिकमेंडेशंस आते हैं, तो ये सारी हैं डायनामिक वेबसाइट्स। ये इनका कंटेंट चेंज होते रहता है हमेशा। गुड। तो थिंग्स, हाँ, तो होस्टिंग के लिए थोड़े से ये टिप्स हैं कि अपने फाइल्स को लाइक एक अच्छे से लाइक हायरार्की में स्टोर करते हैं। जैसे वेबसाइट के मेन फोल्डर के अंदर index.html होना चाहिए, फिर एक CSS फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे styles.css, या अगर मल्टीपल तुम्हारी CSS फाइल्स हैं तो वो सारा एक CSS करके एक फोल्डर में होना चाहिए। और JS करके एक फोल्डर का नाम होना चाहिए, उसमें सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होनी चाहिए। इमेजेस करके एक फोल्डर होना चाहिए, उसमें सारी इमेजेस होनी चाहिए। और ऐसे सारा चीज कैटेगोरी लाइक कैटेगराइज कर देना चाहिए बेसिकली अच्छे से, जिससे क्लीन कोड रहे और लाइक हायरार्की अच्छे से समझ में आए। Cool. तो और जैसे यहाँ पे देख लो कि लिंक रेल स्टाइल शीट, HRFC यूजर्स, इसमें देखो सीजर्स, इसमें तुम्हारे कंप्यूटर से पूरा पाथ दिया है ना, तो और जैसे इमेज का भी देखो सेम तरीके से पूरा पाथ दिया है, C से लेकर तुम्हारी picture.jpg तक, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं रहती। सिंपली लिंक रेल href इक्वल टू css/styles.css, यहाँ पे ऐसे index.html है, तो हम CSS फोल्डर के अंदर गए और इसमें आकर styles.css खत्म। तो बस ऐसे ही फाइल्स को लाइक उनका लिंक देना या उसका हाइपर लिंक देना, बस इतना सिंपल रहता है, और हम लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि फिर वो हर डिवाइस पे खुल सकता है। वरना ऐसे करने में वो सिर्फ एक यूजर के डिवाइस पे खुलेगा और सिर्फ बाकी पे नहीं खुलता है, फॉर एग्जाम्पल। तो हाँ, और स्टैटिक होस्टिंग के लाइक थोड़ी सर्विसेज, तो गिटहब पेजेस तो सबने यूज किया ही होगा अभी, और वैसे एक आता है नेटलिफाई का भी एक वेबसाइट है, और सर्ज एक वेबसाइट है, एक और वेबसाइट है हेरोकू, और काफी लाइक कंपनीज अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्सेल हो गया, और भी लाइक कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट्स हम फ्री के लिए फ्री में होस्ट कर सकते हैं। बढ़िया। और गिटहब पेजेस, तो इसमें तो सबको पता ही होगा, अपलोड योर स्टैटिक HTML से जावास्क्रिप्ट वेबसाइट टू गिटहब रेपो, और फिर रेपो के सेटिंग्स में आके गिटहब पेजेस में उसको उसको करेक्ट ब्रांच चूज करके इसको सेव कर दो, तो फिर तुम्हारा वो होस्ट कर देता है गिटहब। और ये PPT आदित्य सर ने बनाई थी तुम्हें, तो बिग थैंक्स टू तुम्हें और जय वेबटी। और अगर लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल देखना है तुमको वेबसाइट होस्टिंग का, तो वो भी को, अरे हाँ, तो ये ओपन कोड के टाइम हमसे एक गेम बनवाया गया था, तो इसके लिए सिंपली मैंने एक index.html फाइल बनाई, उसके बाद एक styles.css फाइल बनाई, और के सेटिंग्स तो सबको पता है। अभी तक तो तुम लोगों ने ऐसे CV की एक वेबसाइट बनाई थी ना, तो और वो सारा तुमने होस्ट किया था। यहाँ पे ऐसे जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा एक सिंपल सा गेम है, तो चेंज नहीं होना चाहिए कंटेंट। पेजेस में मैंने देखो ब्रांच मेन कर दिया, और मैंने उसको सेव कर दिया, तो ये फ्लैपी ब्लॉक करके वेबसाइट आ गई है। और हाँ, दैट्स इट, प्रीटी मच यही है स्टैटिक वेबसाइट्स का। कुल, तो अब लाइक किसी को डाउट्स है तो गाइस लाइक आराम से पूछ लो। देखो index.html सही है। index.html एक सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन जैसा हो गया है, इसकी जगह main.html ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली
index.html ही यूज करते हैं। जैसे गिटहब में अगर तुम कोई रेपो बनाते हो या तुम कोई कुछ भी करते हो तो उसमें ओरिजिन या आता है ना, ऐसे मास्टर में तुम्हारा मेन ब्रांच का नाम होता है मास्टर, तो उसकी जगह ओरिजिन दे सकते हो या कुछ और भी दे सकते हो, मेन दे सकते हो। लेकिन एक जैसे जनरल कन्वेंशन है, या लाइक कुछ लोग जैसे जो फॉलो करते हैं, जो चला रहे हैं, बस वही बात है। तुमको कुछ और करना है तो फील फ्री। रूट्स और डॉक्स में फर्क इन गिट पेजेस। अच्छा, रूट इज बेसिकली कहाँ से वो फोल्डर आ रहा है। रुको, हाँ, तो रूट मतलब लाइक जैसे कैसे पहले मेरे को देयर रूट कोड में गया, तो ऐसे ये जो मेन फोल्डर तुमको दिख रहा है ना, ये होता है रूट। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, अरे सॉरी। हाँ सही। तो रूट स्ट्रीम आई गेस सही हो रहा है। तो डॉक्स का तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ, लेकिन रूट इज वो वाला डायरेक्टरी में वो जगह जहाँ पे बाकी सारी फाइल्स दिखाते हैं। रूट ऑफ अ डायरेक्टरी जो सबसे बेस होता है, जहाँ पे बाकी सारे फोल्डर्स आते हैं, तो उसको कहते हैं रूट। और जनरली हम लोग वहाँ पे index.html को रखते हैं और वहाँ से हम सारे बाकी डायरेक्टरीज के लोकेशंस डालते हैं। जैसे हम लोग रूट में है index.html के, तो हम स्टाइल शीट में दे देंगे स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम क्योंकि रूट में है, तो फिर रूट के ही अंदर यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सी एस एस है, इसको एक्सेस करना है। तो प्रिटी मच यही है। और डॉक्स का मैं खुद श्योर नहीं हूँ, कोई गूगल का भी देख लेना फट से। कूल। और कुछ और कोई डाउट है किसी को? फिर अब 11 बज गया, 1 घंटे बाद तुम्हारा कॉन्टेस्ट भी शुरू हो रहा है, तो अगर उससे पहले कोई डाउट है तो पूछ लो, एपीआईस में या किसी जेएस में, किसी चीज में भी, तो पूछ लो एक बारी। और तुषार ने पूछा था, हाँ, कि कैसे कौन से फाइल को होस्ट करना है। तो अगर तुमने जैसे गिटहब में अगर होस्ट किया है, तो कोई भी HTML फाइल है तो वो सारे होस्टेड रहेंगे। बस तुमको रूट से उसको, जैसे प्रियदर्शनी ने लिखा है कि तुमको एक स्लैश लगा के फाइल नेम लिख देना, तो सिंपली वही डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कौन से जैसे डायरेक्टरी में से ट्रैवर्स करते हैं ना, उस सेम तरीके से तुमको स्लैश लगा के लिख देना, और बस फाइल फिर डिस्प्ले कर देगा वो गिटहब पेजेस। बढ़िया। और कुछ है किसी को डाउट? लाइक और पहले सर के भी कोई एपीआई का डाउट्स जो आपको है, जो आपने कोड लिखा है वो और एक बार रफली एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्टली प्लीज। एपीआई वाला? हाँ सर। एक सेकंड, सही, सार्थक। जस्ट अ सेकंड। ये पूरा कोड करना है रन, या कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए किसी स्टेप के बाद? पहले तो ये सर बता, स्क्रीन दिख रही है ना? रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन के बाद में बताओ। अच्छा, एक यहाँ तक समझ आ गया कि हमने ये रिस्पॉन्स डॉट ये मेथड क्यों लगाया था, जेसन वाला? हाँ सर। तो उसने ये रिटर्न किया, तो जो रिटर्न किया वो आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, स्टोर हो जाएगा डाटा के अंदर। तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं डेटा। ये जो है ना वो हमको
फिर से एक और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है एक तरह से, तो हम उस पर फिर से देन इसलिए लगा सकते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग डाटा के अंदर ये आया है, ये तुम्हारा एक जेएस ऑब्जेक्ट है। अब इसके आप जेएस ऑब्जेक्ट को में कैसे यूज करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे यूज करते हैं, वो डॉट की लगा के जो तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। जैसे ये डाटा के अंदर रिजल्ट चाहिए तो डॉट रिजल्ट लगा दिया, रिजल्ट एक एरे है तो उसका जोन सा इंडेक्स चाहिए वो बता दिया, फिर उसके अंदर हमें कुछ चाहिए तो फिर डॉट लगा के बर्थ ईयर लगा दिया। ये एरे की भी हर वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है ना, तो अब उसके अंदर हमको बर्थ ईयर चाहिए तो डॉट बर्थ ईयर लगा दिया। तो बर्थ ईयर उसका 19 BBY है तो वो यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया। अब और कोई डाउट है तो इसमें एक बार पूछ लो। सर जो सर इनर वो सब HTML समझ वाला, आ गया, पर gh.innerhtml क्या है सर? ये gh मैंने कांस्टेंट डिफाइन एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट से ओके gh। समझ गया। हाँ, वो उसने आईडी ली इसकी 1 और उसकी इनर HTML चेंज कर दी। और हाँ सर ठीक है। और कोई भी पूछ रहा था पूछ लो एक बार। सर मैं पूछ रहा था कि जब भी हम लोग वेरिएबल डॉट इनर HTML लिखते हैं तो उसके बाद में HTML एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट करना होता है क्या? एज अ फाइल इनपुट नहीं दे सकता मैं, या कोई और तरीका? ये तरीके बहुत होते हैं। तुम इनर HTML में देखो, मैंने तो यहाँ पे कुछ HTML तो इनपुट दिया ही नहीं, मैंने बस कुछ लिखा हुआ इनपुट दे दिया नहीं नहीं, मैं मैंने। इसके स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इन जनरल बहुत मेथड हो सकते हैं। मैंने ये देखा है कि तुम यहाँ पे वो पूरी की पूरी HTML इनपुट दे सकते हो, वो हेडर टैग लगा के प्रॉपर वो। तो तुम कोई फाइल भी दे सकते हो, वो फाइल के अंदर तुमने जो कोड लिखा हुआ है तो उसके लिए एक अलग फाइल बनानी है, और उसका अभी तुम्हें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा होता है, तुम दे सकते हो। अब वो कैसे दे सकते हो, या तो वो फिर किसी से एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो, पर देने के तरीके मतलब तुम दे सकते हो इसके अंदर।